women are not leaders. Women are not born leaders. What's the respect you want? To be with 20 fucking men? Do you want me to respect the fact that you are being with 20 men and I have to respect the fact that yeah, you are a woman, you have the freedom? She wants attention, she is getting it. She wants validation, she is getting it. She wants access to resources, she is getting it. अगर आपको एक्सेप्ट करना है करिए, अगर नहीं करना है प्लीज द डोर इज ओपन. गलती मेरा भी था, गलती मेरा भी था. आपका बहुत बड़ा गलत डिसीजन था. And they make a fake trend. Small creators follow करते हैं blindly, thinking as if ये कोई एक नया trend है. A girl and boy can never be a friend. That's the basic human nature. Two Kukizo women, visibly distressed and crying for help, were stripped naked and paraded by a mob of Meitei men on 4th May, a day after the ethnic violence first broke out in Manipur. The video that surfaced roughly 77 days after the gruesome incident shows the men touching their private parts publicly and dragging them towards a paddy field, where one of them was allegedly gang raped. Hello and welcome to the second video of Anti-Real. मैं शुभो. Hello Mr. Sam, how are you? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बोलिए. आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, वो थोड़ा सा ड्रिवन टूवर्ड्स सोशल इश्यूज, सोशल टॉपिक्स है. कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ये जो चीज़ें मणिपुर में हुआ है, द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, it's not how we are not reacting exactly how we should react. और ये सारे चीज़ कहने का मुझे लगता है अगर ये सारी चीज़ मुंबई या फिर दिल्ली जैसे कोई बड़ा शहर में होता था तो मीडिया का बिहेवियर कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में होता था इसके टूवर्ड्स. और जहाँ पे ये मणिपुर या फिर कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ भी एक्टिविटीज़ होता है हमें वो चीज़ कवर्ड नहीं किया जाता है. So do you think, Mr. Sam, ki India as a country is ignoring the northeast part of India as a part of India, and people are silent about it? हमारा मीडिया सही नहीं है. They are biased. Today's media, we can say that the meme channels are really, and also spreading awareness about all these kind of things among young generations more than media is doing. तो ये बहुत बड़ा चीज है क्योंकि होता है ना सोशल मीडिया क्या लेवल तक इम्पैक्ट किया है. एंड यस, इट इज अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग व्हाट हैपेंड टू इन मणिपुर. बहुत ही गंदा चीज है, ये कभी होना नहीं चाहिए. एंड वी रियली आर सपोर्ट टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये होना तो एकदम नहीं चाहिए था. बट यस, यू आर एंड अगेन यू आर राइट दैट अगर ये सेम चीज दिल्ली, मुंबई या फिर कोई भी बड़ा सिटी में होता शायद इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता. So yes, we need improvement, and our media should be working properly and spreading awareness more than these meme channels, as their job is to do so. ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है. फॉर मी बीइंग एन इंडियन, थिंग्स दैट आर हैपनिंग, ये सारी चीज़ें एज अ सोसाइटी वी शुड नॉट एक्सेप्ट. हाँ, ये कहीं भी होता है ये गलत है. मणिपुर में हुआ ये तब भी गलत है, दिल्ली में होता तब भी गलत है. But at the same time, we should give equal amount of attention to these kind of factors. Media is more driven towards how Bollywood star get out of the airport and how they are dressed up, but they don't show interest in social agendas which can actually improve the society, the balance of our society. So मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा ये सारी चीज़ों पे, और ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा चर्चे होने भी नहीं चाहिए. बट द थिंग इज इट शुड बी स्टॉप. और रहा जो आप बात कहे मिस्टर श्याम, दैट इज आजकल के मीडिया का काम सोशल मीडिया ज्यादा कर रहे हैं. ओपेनहाइमर एक नया मूवी रिलीज हुआ है बाय क्रिस्टोफर नोलन, यू माइट बी नोइंग दैट. एक पर्सपेक्टिव है मेरा, एक थिंकिंग है, दैट इज क्रिस्टोफर नोलन हैव अ वेरी अनहेल्दी कंट्रोल ओवर सोशल मीडिया. तो आपको कहीं लगता है, मैं रीजन बाद में दूंगा, बट आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन कि डू यू थिंक क्रिस्टोफर नोलन हैव अ वेरी अनहेल्दी इन्फ्लुएंस ओवर सोशल मीडिया? I believe it is a yes. He has a brand name, whatever Christopher Nolan have done previously, they are just like an art. Just for an example, recently Barbie भी launch हुआ है with Mission Impossible and Oppenheimer. ये तीनों ने मिलके 80+ करोड़ का स्क्रीन बजट किया है within 1 week. So just think of an impact that Hollywood is having over India. Yeah. तो मैं खाली क्रिस्टोफर नॉलन के ऊपर ही नहीं बोलूंगा. लाइक हॉलीवुड अब धीरे धीरे पॉपुलराइज हो रहा है इंडियन मार्केट में भी.
जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इट इज सच एन इम्पोर्टेंट एंड बिग मार्क, लाइक सलमान खान का जो मूवी निकला है, वो भी 68 करोड़ किया है, उसने भी 80 प्लस करोड़ नहीं किया। या आई नो, आई एम एडिंग ऑल द थ्री मूवीज टुगेदर, बट हॉलीवुड इज हॉलीवुड। उसका देखिए, आप हिंदी डब नहीं है बारबी का। हम्म फिर क्रिस्टो ओपेनहाइमर भी ऐसा ऐसा मूवी है जो सबका इंटरेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये हम्म पूरा डायलॉग बेस्ड मूवी है, कुछ एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक बुक के ऊपर है, जो ओपेनहाइमर का मेन बायोपिक बोल सकते हैं। हम्म तो इसमें कुछ साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं, एक प्योर आर्ट है, प्योर आर्ट, जो क्रिस्टोफर नॉलन का ऑलमोस्ट हर एक मूवी रहता है। इफ आई कंपेयर दिस टू द प्रीवियस मूवीज, यस, हाँ, ये थोड़ा थोड़ा स्लो पेस में था, लेकिन इट्स एन आर्ट, एज आई सेड। ये थोड़ा डिफरेंट मूवी है, ये सब मूवी थोड़ा अलग ही जॉनरा है, नॉर्मली मूवीज ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे, बहुत डिटेल के साथ वर्ल्ड वॉर टू को डिस्क्राइब किया है, विदाउट बीइंग बायस्ड। उसमें हम्म बस एक सीन था कि जिसमें भगवत गीता को दिखाया गया था, एंड आई हम्म डोंट लाइक दैट सीन दैट मच। दैट सीन वाज रियली मिसलीडिंग एंड आई वुड से आर्ग्यूइंग। वो छोड़ के बहुत ही अच्छा मूवी था। इट वाज माइंड ब्लोइंग, जो डेप्थ हर एक सीन का, द साउंड इफेक्ट्स, द थिंग, देयर वाज अ सीन दैट ओपेनहाइमर वाज थिंकिंग, एंड the sound effect was rhythming with how he thinks. हम्म So it was a big thing to replicate all the bombing scenes that really happened during World War II. हम्म। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मूवी है। मैं तो बोलूंगा, जो भी अगर हिस्ट्री का जिसको भी थोड़ा इंटरेस्ट है, ही और शी शुड गो एंड वॉच दिस मूवी। मैं वहां पे आना चाहूंगा अब। थॉमस सेल्वी जो एक्टर है, जो कैरेक्टर है, वो बहुत ज्यादा एक मीम फेमस कैरेक्टर है। एंड रिसेंट ईयर्स में उसका जो सीरीज है पीकी ब्लाइंडर्स, दैट्स बीन वेरी वायरल। सो आई थिंक क्रिस्टोफर नोलन डिड दिस ऑन पर्पस कि एक हाइप क्रिएट हो जाए फॉर द एक्टर। ही इज वेरी नोन, ही इज वेरी मच लव्ड बाय ऑडियंस। और वो जो सिग्मा पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं इस मूवी में भी दिखाया गया था। द डार्कनेस, द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर दैट ही वाज प्लेइंग। सो मेरे हिसाब से क्रिस्टोफर नोलन paid some influencers to make this kind of memes in order to make the character Thomas Shelby more powerful, more a sigma personality. So मेरे हिसाब से जो सोशल मीडिया आज के टाइम पे है, इट्स वेरी मच बायस्ड। सोशल मीडिया पे बड़े इन्फ्लुएंसर्स को कुछ क्रिएटर्स से पैसा मिलता है एंड दे मेक अ फेक ट्रेंड जिसपे स्मॉल क्रिएटर्स फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, थिंकिंग एज इफ ये कोई एक नया ट्रेंड है। क्या आपको लगता है ये सच है? बिकॉज इट्स जस्ट अ थ्योरी दैट आई एम थिंकिंग। यहाँ पे कोई सच नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। इट्स जस्ट अ थ्योरी दैट आई एम थिंकिंग, और मुझे लगता है आई एम 70% ट्रू इन इट। आई विल respectfully, disagree with you. Killian Murphy is an absolutely beast actor who is ओके। playing a fabulous role. That is the Oppenheimer. If you see his previous, that you were talking about, that Thomas Shelby. यप। थॉमस शेल्बी असल में एक बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर नहीं था, वो उसका एक्टिंग वैसे बनाया था। जी। एंड ओपेनहाइमर का जो ये मूवी है, आपने जो कहा कि होता है ना कि बहुत कोई ऐसा कैरेक्टर लिया गया है कि जो बस उसका हाइप था, जैसे जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, या। दैट आयरन मैन। हाँ, बहुत फेमस एक्टर है। तो आप जैसे बोल रहे थे कि यहाँ इसमें इसमें उसको ऐड ऑन किया गया है, जस्ट टू ब्रिंग दैट ऑडियंस टू दैट रॉबर्ट डाउनी जूनियर है इसमें। लेकिन वैसा नहीं है। तो वो लोग होते हैं ना, बस वो कैरेक्टर के लिए फिट हो रहा है। और नोलन नोलन ऐसा ऐसा ही, वो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, कि वो ऐसा ही किसी को चूज करेगा जो वो कैरेक्टर में फिट होगा, ना कि जस्ट उसका फेम है। लाइक बेल, when he was playing Batman, which was also directed by Christopher Nolan, उसके पहले उसका कौन सा बहुत अच्छा मूवी था, एक वो अमेरिकन साइको। हाँ, उसके बाद से सेम सेम जो जोकर का पार्ट था, वो भी तो बहुत कंट्रोवर्सी था कि या। किसको दे दिया। हाँ, एंड वी ऑल नो रेस्ट इज हिस्ट्री। या। एक स्टोरी टेलिंग में जो एक डायरेक्शन होता है, वो ये नोलन से ज्यादा और कोई अच्छा नहीं कर पाता, जो ये मूवी का जो डायरेक्शन था, मेरे हिसाब से। somehow justifiable, but still my point is not being proved मेरे हिसाब से। that character of Thomas Shelby is getting a very sigma attention. Christian Bale character of American Psycho, while they are completely a psychopath. Christian Bale played a character of psychopath in the movie American Psycho, जहाँ पे he
is being portrayed by the social media that ये एक सिग्मा मेल है, जहां पे वो सिग्मा मेल नहीं है. He is a fucking psycho. Somehow social media is very much misleading. It's misleading the youth to a very wrong direction. लोग जा रहे अमेरिकन साइको देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं हाँ अमेरिकन साइको में जो कैरेक्टर प्ले किया है क्रिश्चियन बेल ने, दैट इज वेरी सिग्मा, दैट इज अ साइकोपैथ, इट्स नॉट अ सिग्मा मेल. सो दैट्स हैविंग अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस ऑन आवर सोसाइटी. See, social media is like a दो-धारी तलवार, दोनों पॉइंट है, अच्छा भी है बुरा भी है. Today's a small kid, just 5 years old, can see more naked girls than any other rich king there was ever. कोई भी राजा अभी तक उतना उस पावरफुल नहीं था कि जो कि अभी एक 5 साल का बच्चा है. So you can just think of it like how powerful is social media. And not even social media, like the internet The internet in over the general, case, yes. in general internet is very powerful. लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा तो है दो-धारी तलवार है, इसका अच्छा भी है बुरा भी है. इफ यू जस्ट फोकस ऑन द बुरा साइड होता है ना कि ये बहुत गंदा है, इसमें ये है वो है, ये तो वैसा ही हो गया कि होता है ना आप खाली एक ही साइड में फोकस करें. अच्छा भी बहुत अच्छा है. लाइक आई सेड बिफोर दैट मणिपुर केस, इट रियली गॉट हाईलाइटेड बाय द सोशल मीडिया. अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ही हम लोग को मालूम पड़ता, शायद ही. तो वही पार्ट है कि हाँ कुछ अच्छा है, कुछ प्रोज है, कॉन्स है, लेकिन हम लोग को शायद फोकस ज्यादा करना चाहिए पॉजिटिव साइड. दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव एनर्जी अमंग ऑल ऑफ अस, और ये ज्यादा अच्छा होगा फ्यूचर के लिए भी. Speaking about future of our society, the social media influencers who are influencing the kid, the youth of our generation. I'm not talking about man. Man are going into completely different direction. They are thinking that they are sigma. They are thinking that they can do whatever they can say whatever they want. They can do whatever they want. But speaking about girls, जहाँ पे influencers, I would like to show you a video. Just check it out once. So my concern was either I can be concerned that shit everybody's seeing me naked, or I can be concerned कि okay actually में क्या हुआ है and इसके आगे अब क्या करना है, you know. So change your mindset also. I would say to the girls is that hard times is the least of your concerns. Think about how much it's going to build you. Think about your stand. Think about who you're going to be after this. And for me, I was like 2 महीने हैं. And मैं आपको सच बताऊं, 2 महीने में लोग भूल गए. And that pisses me off more. I'm like, तब मैं अपनी जान ले लेती. And I would have been gone. और आप फिर भी 2 महीने बाद भूल जाते. You know? That's what pisses me off. I was like, आपका इतना stand था कि तू इतनी गलत है कि तू अपनी जान ले ले. फिर 2 महीने में कैसे भूल गए? Then remember ना आपका stand था. So my point is this कि your stand will usually be bigger than other people's stand. वो सच्ची में 2 महीने बाद भूल जाएंगे. मेरा नेशनल लेवल पे हुआ था और आज के टाइम में मुझे एक भी मैसेज नहीं आता है. कमेंट्स तो लोग करते हैं, that's more for people. मुझे people don't message. Like I've done other things, you know, that people value more. So You saw the video, Mr. Shant. Yes, I did. क्या कहना है Another आपको? fatherless act. Another fatherless act. So now the video is going to be interesting. यहाँ पे this girl have to say that 2 महीने बाद लोग भूल जाएंगे जो काम इसने किया है. What about your father? What about your mother? What about the husband that you are going to have in few days? What about your kid? जो कुछ दिन बाद जो बड़ा होगा उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स उसका खिल्ली उड़ाएंगे ये बोल के कि I saw your mother naked. उसका हस्बैंड को ये उसका दोस्त लोग ताना देगा, भाई what the thing that you are having that we haven't seen? What's the mystery? What's the catch over there? Your girl is a open book which everyone have saw. हाँ लोग भूल जाएंगे 2 महीने में, but they don't give a fuck about you. उनको फर्क ही नहीं पड़ता है. कल को तुम्हारे जैसे और लड़कियां आएंगे, उनके और न्यूड वायरल होंगे, उनके और मजे आएंगे. उनको क्या है भाई, मेरे को अगर आता है मुझे क्या, मैं जाके नहीं बोलने वाला हूं उसे कि डोंट डू दिस डोंट डू दैट. मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है. बट जब तक बात आता है अपना फैमिली पे, व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? 2 महीने बाद वो नहीं भूल जाएंगे कि मेरा बेटी का न्यूड वायरल हुआ था. 2 महीने बाद आपका हस्बैंड नहीं भूल जाएगा कि आपका उसका वाइफ का न्यूड वायरल हुआ था. आपका बेटा 10 साल बाद भी नहीं भूल जाएगा. जब उसे पता चलेगा ही विल गेट डिस्टर्ब. सो हाँ, अभी के लिए यू आर गेटिंग फन, यू आर गेटिंग अवे विद इट, बट थिंक अबाउट द फ्यूचर. This is another fatherless act. जैसे आपने कहा, ये ट्रामा को जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल से समझा रहे हैं. अगर किसी बच्चे को बचपन में, मतलब कोई भी आदमी को बचपन में, लड़की को स्पेशली अगर बचपन में ट्रामा मिला है तो ट्रामा के साथ ही वो रिएक्ट करेगा हर एक चीज को.
अगर वो बाद में बड़े होके उसको लव भी मिले, वो भी ट्रामा के साथ ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर कोई बच्ची को अगर बचपन में, चाइल्डहुड में, अगर उसको लव मिला है बहुत सरप्लस में, वो बाद में रिएक्ट करेगी भी लव से। तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ये पूरा फादरलेस एक्ट है, उसको कभी प्यार नहीं मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर, ये पूरा जो भी हुआ है, अगर न्यूड्स वायरल हुआ, मुझे पूरा डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़का करता है, ये 100% उसी का गलती है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद ये बोल देने के बाद अब मैं बोलूंगा, व्हाई डिड यू चूज हिम? उसमें क्या दिखा? फर्स्ट हाँ, फर्स्ट व्हाई थिंग, डिड यू हाँ चूज हिम? हाँ ये तो आपका गलती आ गया ना। आप ये तो अब ऐसा बात आ गया, अगर सोचिए आप अगर एक लड़की है और जिसके पास, आप अगर लड़के हैं, हाँ, सोच लिए सुबह आपको बोल रहे हैं हम, हाँ हाँ, जी। आपके पास 1 लाख रुपया है एक सूटकेस में। हम्म अभी आप रात 12 बजे 1 लाख रुपया सूटकेस में सिर में ऐसे लेके अगर एक ऐसे नेबरहुड में जाएंगे जहां आपका पैसा आपसे छीन लिया जाएगा, जी आपका छीन भी लिया जाता है, तो आप फिर रोते रोते आके मुझे बोलेंगे कि अरे देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं पहले ये बोलूंगा, रात 12 बजे तुम सूटकेस लेके वहां क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ना, एग्जैक्टली ना। या ये तो घूम फिर के आपका बुरा डिसीजन है। हाँ, जी चोरी वो उसने नहीं किया है, गलती हम्म उसी का है, हम्म लेकिन ये आपका गलत डिसीजन था ना। गलती मेरा डैमेज भी तो था, आपको गलती मेरा भी था। हाँ, आपका बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। सेम चीज लड़की के ऊपर भी है। वो क्यों ऐसा डिसीजन ली? दैट इज द रीजन दैट डेटिंग डेटिंग कॉन्सेप्ट क्यों है, पहले जानो एक दूसरे को। अभी का हम देखते हैं कि क्या सिचुएशनशिप, व्हाट द फक इज दैट सिचुएशनशिप? वन ऑफ माय फ्रेंड is having a situationship with some guy, हम्म and he is fucking her every day. She's been pregnant 3 times. Shit. 3 times, 3 times। और उसने उसको मैंने जब पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोल रहा है हाँ कि ही इज गुड एट पुलिंग द गेम, पुलिंग आउट, दैट पुल आउट गेम। ओके हाँ, तो अगर अच्छा होता तो 3 बार कैसे हो गया? या नहीं, What the fuck is this? if he is, aren't you aware of the medical terms, how you are getting Exactly. how you are getting into things जो आपके लिए गलत है? आपको समझाया जाता है बचपन से, हाँ मुझे पता है इंडिया में सेक्स एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, बट देयर आर फ्रेंड्स, देयर आर पीपल हु यू शेयर विद। बहुत लोग हैं जिनके पास लोग नहीं है बात करने के लिए, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सही चीज है, आप गलत चीजें सीख रहे हैं वहां पे, आप सही चीजें नहीं सीख रहे हैं, तो गलती किसका है? आपका है। वही ना, वही ना। अगर लेकिन अगर मैं ये चीज पॉइंट आउट कर दूंगा, मालूम है क्या मैं हो जाऊंगा उसका, वो सबके सामने मिसोजिनिस्ट। ये अगेन द यही टर्म। तो हो गया ना। तो ये कुछ मतलब ये पॉइंटलेस चीज आ गया है क्या, सिचुएशनशिप है ना। वी आर टॉकिंग इन दिस, दे आर क्लियरली स्लीपिंग विथ ईच अदर, बट दे विल से वी आर टॉकिंग। हाँ, ये मतलब मुझे तो अभी तक समझ में ही नहीं आया कि क्या चल रहा है। और रहा बात न्यूज वायरल होने के बाद, यस, हाँ, ये बहुत ही बड़ा चीज है। इसको ये लड़की लोग को मालूम नहीं है कि कितना बड़ा इम्पैक्टफुल है, जब तक ना फ्यूचर में ये हो। सोचिए अगर उसके साथ किसी का शादी या फिर कुछ भी आगे चल जाता है बात, हाँ, कुछ भी आगे चल जाता है बात, और उसको 5 साल बाद भी अगर मालूम चले ना कि मेरा बीवी के हो ना न्यूज वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, फिर होता है शादी का कुछ दिन पहले, उसको हवा पे उड़ते उड़ते फिर मिला, क्योंकि वन समथिंग इज अपलोडेड इन द इंटरनेट, इट्स ऑलवेज देयर। या हाँ, वो हमेशा रहेगा। कोई कुछ भी बोल दे कि सर्वर से डिलीट हो गया ये वो हमेशा बैकअप होता है। ये बुलशिट है। अगर किसी ने बोला कि यार है ना वो इंटरनेट से तो उड़ गया है, आई एम सेफ, उसको हस्बैंड को कितना डिसरेस्पेक्ट होगा। उसका लड़का कभी तो आर्ग्यूमेंट में जीत ही नहीं सकता, वो तो बात छोड़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज डिसरिस्पेक्ट नहीं, द हस्बैंड विल फील चीटेड। जो मोस्ट प्रोबेबली दे विल डिवोर्स। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स देयर पर्सनल लाइफ, मुझे वहां पे नहीं जाना है। बट मेरा जो फैक्ट है कि जो आजकल के लड़कियां का बात करने का स्टाइल है कि 2 महीने बाद तो लोग भूल ही जाएंगे, सो अगेन आई हैव द फ्रीडम टू डू इट, आई विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ ईच एंड एवरी टाइम, एंड फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग तो भूल गए हैं। चलो एक बंदा एग्जैक्टली। को पता नहीं था उसका ये सब हुआ है, ही मैरिज दैट गर्ल, 7 साल 10 साल बाद भी अगर वो बंदा को पता चलता है, ही विल फील चीटेड, no matter how much he loves that girl, he will feel cheated, because उससे कुछ चीजें छुपाए गए हैं जो एक रिलेशनशिप का बेसिक्स होता है, that you shouldn't hide things which happened with you in the past। अगर आपको एक्सेप्ट करना है करिए, अगर नहीं करना है प्लीज द डोर इज ओपन। ऐसा ही होता है। अगर किसी ने बोल दिया कि पास डजंट मैटर, ऑफ कोर्स ये एकदम बुलशिट है। फॉर बॉडी काउंट, पास, फॉर एवरीथिंग फॉर मैटर्स। फॉर अ गर्ल past matters, for a boy his future matters, past यस। doesn't matter for a boy।
It sounds very misogynistic, but it's true somewhere. कोई लड़की एक लड़के के साथ नहीं आएगा जो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, और सेम अगर कोई लड़का एक लड़की के साथ नहीं आएगा जिसका पास्ट बहुत ही गंदा रह चुका है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो फ्यूचर में भी वैसे ही करेगी। गंदा पास्ट से और एक चीज उठ के आता है। आई सी कॉलेज गर्ल्स नाउ डेज हैंग आउट विथ सो मेनी बॉयज, लाइक वो ग्रुप में वो लड़की सिर्फ एक इकलौती लड़की है जो यू नो 20 बंदों के साथ बाइक राइड पे जा रही है। गलत बात नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट वो 20 बंदों में एक भी आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, सब यू आर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी कुछ करता है, ऑफर करता है, यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट बिकॉज दे डोंट हैव अथॉरिटी ओवर यू। सो मैं अगर उसका बॉयफ्रेंड बनता हूं, मेरा क्या एक्सक्लूसिविटी बचता है? दैट आई कैन सी हर नेकेड, दैट्स द एक्सक्लूसिविटी दैट आई हैव। वो तो उसको जो करना है वो कर रही है बाकी लड़कों के साथ, घूमना है, जाना है, ये करना है, वो करना है, मुझे यहाँ डिनर पे जाना है, डेट पे जाना है, कुछ भी जाना है, शी इज डूइंग वट एवर शी फील लाइक। तो मेरा एक्सक्लूसिविटी एज अ बॉयफ्रेंड, what I have, that I can see her naked. That's the only thing that I have in my bucket list to have a girl. Ki the only thing that I have exclusive is I can see her naked. That's the exclusive thing I can do being in a relationship with a girl nowadays. इट इज सैड बट इट इज ट्रू। अभी का सोशल मीडिया रियली स्पॉइल्ड एवरी गर्ल। ज्यादातर Not only girl, not लड़कियां only ये girl. सोचती See, है। this is a very very bad term that we are blaming the girls. एक लड़की घूमने जा रही है किसके साथ? लड़कों के साथ। So गलती वहां पे लड़का भी है। अगर मेरे साथ कोई लड़की आता है and asking me for a friendship, I won't, because मुझे पता है a girl and boy can never be a friend. That's the basic human nature. So अगर देख वहां पे we are blaming, no, अगर वहां पे हम लोग blame कर रहे हैं सिर्फ एक लड़की को, we are wrong. वहां पे एक लड़का भी रॉन्ग है। हाँ, लड़की का गलती इसलिए ज्यादा है बिकॉज लड़की हैव अ बाउंड्री दैट यू कैनॉट क्रॉस दिस वॉल। इफ यू वांट टू हैव अ फ्रेंडशिप विद मी, कूल विथ यू होमी, बट एट द सेम टाइम you have some boundaries that you cannot surpass. से आई वुड लाइक टू डिसएग्री विथ यू। एक लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन टर्म रहे तो बहुत ही रेयर चीज है। जस्ट एज एन एग्जांपल यू गिव, कि एक लड़की 20 लड़कों के साथ, मैं गारंटी दे सकता हूँ 19 ऑफ देम वांट्स टू स्लीप विद हर। Of course. That's the हाँ, मैं point श्योर हूँ। that's the point I was trying to make कि 20 बंदा का exclusivity रहा ही नहीं कुछ me as a boyfriend, क्योंकि वो 20 मालूम है सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? लड़की को ये मालूम होता है। एग्जैक्टली। हाँ, लड़की को ये मालूम होता है, लेकिन वो होता है ना ओवरवेलमिंग अटेंशन, वो इतना एडिक्ट हो चुकी है वो ओवरवेलमिंग अटेंशन के, वो जो चाहती है तो उसको तो मिल जा रहा है ना। शी वांट्स अटेंशन, शी इज गेटिंग इट। शी वांट्स वैलिडेशन, शी इज गेटिंग इट। शी वांट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, शी इज गेटिंग इट। हाँ, इसको और क्या चाहिए? टेक्निकली एक रिलेशनशिप में ही है, लेकिन अगर जब कोई अल्फा तो नहीं बोलेंगे, जो जिसको बाउंड्रीज आता है कि कौन सा मेरा बाउंड्री है, अगर वो वैसा कोई लड़का उसका लाइफ में आ जाए जो उसका बॉयफ्रेंड हुआ, वो स्ट्रिक्टली बोल देगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं, वो नहीं, तभी मालूम है क्या होगा? chaos starts. No chaos. You don't have control over my life. You cannot control me. See, I have a freedom. You are a toxic. While she is getting attracted to the toxicity that is around her, but at the same time, जब एक लड़का उसे improve करने की कोशिश कर रहा है, that you've been through so many things. Now you are my girl. Yes. You're my queen. You have to be like this. You have to be like that in order to be my queen. But at the same time, लड़की, you're so toxic. You don't have respect for me. And what's the respect you want? To be with 20 fucking men. That's the respect you want. Do you want me to respect the fact that you are being with 20 men, and I have to respect the fact that yeah, you are a woman, you have the freedom. This is the freedom that you want. Yes. लड़कियों लोग ये बोलती है कि होता ना कि we fought for our freedom, लेकिन ये फ्रीडम के लिए नहीं लड़ी है वो लोग। ये फ्रीडम फॉर वोट, फ्रीडम फॉर वाटर, नॉर्मल रिसोर्सेज, स्पीच, ये सब के लिए पहले लड़की लोग लड़ाई थी, होता है ना, लड़ाई हुआ था, जो भी the war happened, the every march happened for this kind of stuff, not to strip around on social media, strip around in front of 100 million boys. This is bullshit. Exactly. ये disappointing है।
disappointing है. every other influencer nowadays have an OnlyFans account in their bio. So that's the society that we are going That's into. influencing. That's influencing. That's super influencing. That's the influencer that nowadays Gen Z, I would say the term Gen Z girls are driving. That yeah, this is my influencer. I'm influenced by her, and she's doing a cool shit in her life, and I want to be like her. What she is? She's a whore. She's an e-girl who is a whore. She's technically a whore, right? She's doing it in front of a camera, and previously the whore used to do it in front of real people. That's the difference. You know, from influencing, I have a video for you. So this time Sure. I have also prepared for something for you. I would love to. I would love to. I appreciate you banging my wife. Oh my God. Well, I'm a professional, you know. I go in, I knock it out. That's what I do. Hey, I absolutely, I cannot hold it against you, my friend. Did you see it yet? I saw a few of the clips, and yeah, I think you put it down. The image above is my wife about to film her first ever scene with a performer besides myself. And this is my question. Why in this modern day and age where, you know, trans stuff is all good, we seem very accepting of like everybody's preferences and what they're into, what is so wrong with me being down with my wife doing something like this? सुबह आपने जैसे देखा, आपको Yeah. क्या कमेंट रहेगा ये सब वीडियो पे? See, first of all, the profession that they are in, it's a very professional work. I don't want to comment on anyone's profession. Okay, but at the same time, I think the basics of a relationship, the basics of marriage, as an Indian, I'm saying my point of view. Basics of a marriage ये है कि आप और वो साथ में रहेंगे 7 साल मेरे हिसाब से 7 years is not a joke. 7 years of your life you're dedicating. It's not even funny anymore. It's not even funny anymore. It's just making me laugh on myself. कि अगर मैं अपना लाइफ का 7 साल I am dedicating to somebody, and this is the thing that I'm getting in return. And as a man, I have to respect the fact that she wants to get fucked by another man, and which is the freedom that girls want nowadays. This is the thing feminists are fighting, that I have the right, I have to live the life the way I want. Their profession is their profession, I don't want to be. But the niche of a marriage, the niche of a relationship is loyalty, and which I see never. In this clip, there is no niche of, there is no ethical value in this video. सुबह मैं ये फाइनली बोलने वाला हूँ. Hmm. Women are not leaders. Women are not born leaders. वो लीड नहीं कर सकती. आपका क्या गेस है? ये आइडिया किसका था? लड़का का या लड़की का? Of course लड़की का. Of course, yeah. हाँ. 7 years they've been together. बट वो कभी ऐसा कोई लड़के के साथ सीन नहीं की थी. होता ना वो लोग का शूटिंग नहीं हुआ था. वो हमेशा लड़की के साथ करती थी. 7 साल बाद अचानक उसको थॉट आया कि यू नो शी वांट्स टू बी विद अनदर मैन. मुझे ज्यादा शौक हुआ वो एडम का साइड से जो रिएक्शन हुआ कि यू नो इट्स फाइन. कौन सा हस्बैंड ऐसा करता है? मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा कि डोंट रिलेट, है ना. कोई भी ये चीज रिलेट मत करो. होता है ना, ये सब बहुत ही गंदा चीज है. दिस इज डिसइंजेन्युअस. ये कैसा रिएक्शन है? कोई हस्बैंड कैसे कोई किसका सोच भी नहीं सकता. मैं सोच भी नहीं सकता. ये See, इतना गंदा चीज है. In this point, I would say the husband have no choices left. Also, I respect the fact that they are porn stars. They have, this is their profession. There are married porn stars who are shooting with somebody else. But the fact is कि आप इसको एक मुद्दा बना के सोशल मीडिया से व्यू ले रहे हैं और लोग उस पे जुड़ रहे हैं. So people are getting influenced by you. If you have this opinion, keep it by yourself. Don't express No. wrong See. things to our society. हाँ, exactly. You know, after the interview, what Adam said, you know, to the to the camera, we should be, you know, cocky. We should have a cocky relationship. What the fuck is cocky, man? I've never heard a term like cocky. Yeah. तो उसके हिसाब से फ्रीडम रहना चाहिए, यू नो. कुछ नया चीज ट्राई करना चाहिए. मतलब व्हाट द फक इज दैट? मेरे हिसाब से तो एक शादी
एक मैरिज वाज दैट काइंड ऑफ अ सीक्रेट थिंग, कभी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए हम्म, कि किसी के साथ भी कर लिए, कुछ भी कर लिए। एक हम्म, मैरिज बहुत ही सीक्रेट चीज है, जो मतलब शायद हम लोग के एंशियंट बुक्स में भी है कि बहुत ही प्योर चीज है, जो कभी हम्म, ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे हम लोग 7 फेरे लेते हैं 7 जन्मों के लिए, हम्म। 7 जन्मों में साथ चाहिए। 7 जन्मों में साथ नहीं चाहिए, इसी जन्मों में हर एक 7 जन्म में साथ ही चाहिए। 7 जन्मों में, इस जन्मों में ही सबका साथ चाहिए। हाँ, सात क्या जन्मों है में मतलब, what the it's fuck not is it's this? not it's not even funny anymore for me. I'm laughing, मैं हंस रहा हूँ, बट मेरे लिए फनी नहीं है। एक सिचुएशनल वाइज इट्स जस्ट फक्ड, इट्स डिस्टर्बिंग कि It's disturbing. it's just disturbing for a healthy society, for normal people. For me, it's very uncomfortable to think my girl around other men. Ha, she can have friends, she can have talking terms with everybody, but there should be a boundary at the same time. Even as a man, I also should be in a boundary. That I have to respect the fact कि मेरा ये करना है, उसका ये करना है, and we have to go by our own boundaries. ये नहीं कि वो इस ये कर रहा है मैं भी ये करूंगी, वो कर रही है मैं भी ये करूंगा. No, the gender roles are completely different. She is making food for you, you have to earn money for her, you have to protect her, you have to provide her, and she have to protect and provide her or provide you at in a very different perspective.